Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is operative obstetrics, right? So let's start with it. So first of all comes the types. Okay, what all procedures are coming under operative obstetrics? So there are like two approaches. Okay, जब vaginal approach हो सकती है, abdominal approach हो सकती है. ठीक है. So in vaginal approach, operative obstetrics include forceps delivery, breech extraction and vacuum extraction, right? While abdominal approach includes C-section and postpartum hysterectomy, right? So we will be discussing all of these one by one. First of all comes forceps delivery, right? So this is by vaginal approach. So forceps are a surgical instrument that resembles a pair of tongs and can be used in surgery for grabbing, maneuvering or removing various things within or from the body. They may be used to assist the delivery of a baby as an alternative to the ventouse, that is vacuum extraction method. ठीक है. फोर्सेप्स जो है ये हम क्यों करते हैं, हम कोई भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए किसी मैन्यूवर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड this particular method is like an alternative to vacuum extraction method, which we will be doing in the upcoming slides. So classifications आपकी forceps की आ जाती है. There are variety of forceps which are being used in the hospitals. So number one is outlet forceps, another one is low forceps, then mid forceps and high forceps, right? So number one comes outlet forceps. So outlet forceps जो होते हैं इनको हम regular forceps भी बोला जाता है इनको, and they are used exclusively in outlet forceps operation. ठीक है. और outlet forceps use करने के लिए there should be several conditions which are listed below. So number one is scalp should be visible at the introitus without spreading the labia. ठीक है. लेबिया को विदाउट हमारी मैनुअल सेपरेशन के बिना, ठीक है, स्कैल्प जो होगा वो विजिबल होना चाहिए इंट्रोइटस के पास. देन फीटल स्कल हैज रीच द पेल्विक फ्लोर. जो फीटल स्कल होगा दैट शुड बी रीचिंग द पेल्विक फ्लोर. देन थर्ड कम्स दैट द सजाइटल सूचर इज इन द एपी डायमीटर. ठीक है. सजाइटल सूचर होगा दैट शुड बी इन द एपी डायमीटर ऑफ द पेल्विस, और द पोजीशन शुड बी राइट ऑसिपिटो इंटीरियर और राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, या फिर लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर और लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर. नेक्स्ट कम्स फीटल हेड इज एट और ऑन द पेरिनियम. ठीक है. जो फीटल हेड होगा वो पेरिनियम पे होना चाहिए. देन रोटेशन डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री, मतलब एपी डायमीटर में होना चाहिए. तो जो रोटेशन होगी, ठीक है, वो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो दीज कंडीशन शुड ऑल बी फुलफिल्ड. Then comes low forceps delivery. So low forceps delivery is there when the baby's head is at +2 station or lower. ठीक है. जो बेबी का हेड होगा, स्टेशन ऑफ हेड होगा, दैट शुड बी एट +2 स्टेशन और लोअर. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रोटेशन फॉर दिस टाइप ऑफ डिलीवरी. ठीक है. तो लो फोर्सेप डिलीवरी में देयर इज नो सच मतलब रिस्ट्रिक्शन की रोटेशन जो है वो 45 डिग्री ही होनी चाहिए, राइट? Then comes mid forceps delivery. So mid forceps delivery is when the baby's head is above +2 station. ठीक है. तब करते हैं हम जब station of head जो होगा that is +2 and there must be head engaged before it can be carried out, right? So head engagement should be there. Then next comes high forceps delivery. High forceps delivery is not performed in modern obstetrics practice. It would be a forceps assisted vaginal delivery performed when the baby's head is not yet engaged. तो आजकल हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और ये होता कब था? High forceps delivery earlier it was used when the baby's head is not yet engaged. ठीक है. तो इससे इंजरी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी के भी चांसेस इंक्रीज होते हैं. इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड है वी आर नॉट यूजिंग इन मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स. Then next comes techniques of forceps delivery. ठीक है. This particular technique I have already taught you in the classroom, right? So we'll be discussing this virtually, है ना, कैसे कैसे क्या क्या steps होते हैं इसके अंदर. So the cervix must be fully dilated and retracted. Cervix जो है वो dilate होना चाहिए fully and it should be retracted and the membrane should be ruptured, right? Then the urinary bladder should be empty and the station of the head must be at least +2 in the lower birth canal. ठीक है. जो station of head होगा that should be +2 or more than +2. Then the woman is placed on her back, usually with the aid of stirrups or assistance to support the leg. तो जो lithotomy position है हमने इसमें पेशेंट को देनी है. एंड forceps डिलीवरी है तो हम पेशेंट को माइल्ड, लोकल और जर्नल एनेस्थेटिक एजेंट भी जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, राइट?
Then next comes ascertaining the precise position of the fetal was accomplished by feeling the fetal skull, suture line and fontanelles. In the modern era, confirmation by ultrasound is essentially mandatory. ठीक है, so before application of forceps, one should know like the exact location of the sagittal suture. ठीक है, and that should be confirmed with the help of ultrasonography. So at this point, the two blades of the forceps are individually inserted. As we all know, we have discussed this in the class in detail. हमने demonstration भी आपको दिया था इसका. So दोनों blades जो है वो one by one insert करेंगे. ठीक है. So the posterior blade first, then lock, then the position on the baby's head is checked, and after that the fetal head is then rotated to the occipito anterior position if it is not already in that पोजीशन. अगर ऑसिपिटो इंटीरियर पोजीशन में नहीं होगा तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे कि वो ऑसिपिटो इंटीरियर पोजीशन में आ जाएगा. देन एन एपिजियोटमी मे बी परफॉर्म्ड इफ नेसेसरी एंड द बेबी इज देन डिलीवर्ड विद जेंटल ट्रैक्शन इन द एक्सिस ऑफ द पेल्विस. ठीक है, आपको क्लास में बेटा राइट ब्लेड और लेफ्ट ब्लेड का मैंने बताया था कि कैसे हमने इंसर्शन करना है ना, तो वो सारा प्रोसीजर वहाँ पे सेम रहेगा. देन यूजेस ऑफ फोर्सेप्स. ठीक है, तो मैटरनल और फीटल इंडिकेशंस होती हैं, है ना, जिस मतलब ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ सकता है. देन प्रोफाइलेक्टिक भी इसका एक पर्पस है. देन इलेक्टिव भी पर्पस हो सकता है इसका, जिसको कि हम चूज़ करते हैं, राइट. सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स विच आर अवेलेबल इन मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स. देन व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर फोर्सेप्स डिलीवरी, राइट. सबसे पहले आपके आती है मेटर्नल इंडिकेशंस, राइट. मेटर्नल इंडिकेशन में आता है इफ द मदर इज हैविंग एनी हार्ट डिसीज और एनी पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज और इंजरी और एनी काइंड ऑफ इंट्रापार्टम इन्फेक्शन और सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, exhaustion and prolonged second stage of labor. So these all accounts for maternal indications for forceps delivery. Then fetal indications में आपका आ जाएगा if there is prolapse of umbilical cord or if there is premature separation of the placenta or if there is non-reassuring fetal heart rate pattern. ठीक है, so we'll be introducing the forceps in these following conditions. Then there are certain prerequisites for application of forceps delivery. Number one is the head should be engaged. As I have told you earlier, the station of the head should be +2 or more than +2, right? Then presentation vertex और chin anterior होना चाहिए. Then position जो है वो known होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो fetus का head है वो कौन सी पोजीशन में है, जो fetus है वो कौन सी पोजीशन में है. Then cervix should be completely dilated and membrane should be ruptured and there should no disproportion between the head and pelvis. That means कि there should be absence of CPD, that is cephalopelvic disproportion. Then comes complications of forceps delivery. ठीक है, what complications can be there? So maternal complications like lacerations can be there or even there can be uterine rupture or there can be urinary and rectal urinary and रेक्टल बॉवल इनकंटिनेंस आप इसे बोल सकते हैं. देन फेब्राइल मॉर्बिडिटी के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं इससे. देन फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लाइक ट्रॉमा, कट्स, ब्रूजेस, सिफेलोहेमेटोमा, टेम्परेरी फेशियल नर्व इंजरी और क्लाविकल फ्रैक्चर. ठीक है, सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर ड्यू टू द यूज ऑफ फोर्सेप्स. देन नेक्स्ट कम्स ब्रीच प्रेजेंटेशन. ठीक है, सो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है इसमें हम ब्रीच एक्सट्रैक्शन करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना. तो वेजाइनल अप्रोच से अगर हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो कई बार हेड जो होता है वो स्टक हो जाता है, राइट, और जो बेबी होता है वो प्रॉपरली डिसेंड नहीं हो पाता या फिर वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, तब हम ब्रीच एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस टॉपिक. अदरवाइज ब्रीच प्रेजेंटेशन का टॉपिक डिटेल में हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में, है ना. So a breech presentation is defined as the condition in which the baby is in longitudinal lie and the podalic pole presenting at the pelvic brim when the head occupying upper pole of the uterus, है ना. तो head जो होगा वो upper pole of the uterus में होता है और जो buttocks होते हैं that will be occupying the lower pole of the uterus and the lie will be longitudinal. Then types of breech आ जाता है. Type of breech में आपके दो आती हैं mainly, complete and incomplete. जो frank breech है that is also coming under इनकम्प्लीट ब्रीच ओनली, राइट. सो कंप्लीट ब्रीच में क्या है, जो एटीट्यूड होगा बेबी का दैट विल बी फुल फ्लेक्शन. ठीक है, फुल फ्लेक्स्ड होगा. और फ्रैंक ब्रीच में क्या होगा, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं दैट विल बी फ्लेक्स्ड एट द हिप्स एंड एक्सटेंडेड एट द नीज. तो उसकी जो नीज होंगे लेग्स होती हैं वो आप बोलो कि दैट विल बी अराउंड द हेड. ठीक है, हेड के अराउंड होती है, एक्सटेंडेड होती है ना नीज पे, इसलिए. सो दिस इज द पिक्चर, राइट. ये देखिए आप, है ना,
This is the frank breech and this one is the complete breech, and this one is the picture showing the incomplete breech presentation. Then next comes मेथड्स ऑफ ब्रीच डिलीवरी. ठीक है, सो मेथड्स ऑफ ब्रीच डिलीवरी में आपका जाता है स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी हो सकती है. स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी का मतलब क्या है? अपने आप हो रही है विदाउट एनी एड. देन पार्शियल ब्रीच एक्सट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस अप टू द अम्बलाइकस. ठीक है, देन टोटल ब्रीच एक्सट्रैक्शन भी हमें कई बार करनी पड़ती है. पार्शियल में क्या है कि अप टू द अम्बलाइकस तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बट उसके बाद हमें ब्रीच को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. लेकिन जो कंप्लीट है या टोटल ब्रीच एक्सट्रैक्शन में पूरे के पूरे बेबी को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. सो मैन्यूवर्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर ही ये टॉपिक आता है. ठीक है, सो मैन्यूवर्स में आपका सबसे पहले आएगा पिनार्ड्स मैन्यूवर. राइट, सो दिस इज डन इन केस ऑफ फ्रैंक ब्रीच. ठीक है, जिसमें कि जो लेग्स होंगी वो फेस के पास होंगी, जो फीट होंगे वो फेस के पास होंगे बेबी के. ठीक है, सो इट इज यूज टू डिलीवर अ फुट इनटू द vagina. Then two fingers are carried up along one extremity to knee to push it away from the midline. Then spontaneous flexion follows, as you can see in this picture, right? So the two fingers are carried up along one extremity to the knee to push it away from the midline, जिससे क्या फ्लेक्शन हो जाती है और फिर जो डिलीवरी है लेग्स की एक्सट्रीमिटीज की वो पॉसिबल हो जाएगी. दिस इज पिनार्ड मैन्यूवर. देन सेकेंड कम्स मैरिक्यू मैन्यूवर. ठीक है, सो मैरिक्यू मैन्यूवर के लिए ज़रूरी क्या है? जो बैक होगी फीटस की दैट शुड बी एंटीरियर, ऊपर की तरफ वो होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैलर फ्लेक्शन टेक्निक. ठीक है, सो डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड, दिस इज यूज टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग हेड. इसमें पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है लेकिन जो हेड होता है फीटस का वो स्टक हो जाता है. एंड दिस पर्टिकुलर मैन्यूवर इज यूज फॉर डिलीवरिंग ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड. And what we are doing in this, index and middle finger जो होती है that is applied over the maxilla to flex the head, as you can see here. ठीक है, जो maxilla होंगे, maxillary bone होती है यहाँ पे cheeks के अराउंड, लिप्स के अराउंड जो दो कॉर्नर्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे अपनी दो फिंगर्स रखेगा जो ऑब्स्टेट्रिशियन होंगे और ऊपर से वो कंप्रेस करेंगे, है ना, इस तरह से प्रेशर जनरेट करेंगे. सो दिस इज मैलर फ्लेक्शन टेक्निक. देन नेक्स्ट कम्स पाइपर्स फोर्सेप. ठीक है, जो पाइपर फोर्सेप होता है दैट इज ऑल्सो यूज टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग हेड. ऐसे आप देख सकते हैं फोर्सेप्स को इस डायरेक्शन में इस तरह से अप्लाई करके प्रेशर जनरेट किया जाता है और बाकी की बॉडी को इस तरह से रैप करके ऊपर की तरफ को पुल किया जाता है. राइट, सो दीज आर दी पाइपर्स फोर्सेप एंड दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर डिलीवरिंग द आफ्टर कमिंग हेड. देन मैटरनल रिस्क है ब्रीच डिलीवरी के साथ कौन कौन से हो सकते हैं? मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन रप्चर के चांसेस हैं, सर्वाइकल लेस्ट्रेशन के चांसेस हैं. देन देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ द एपिजियोटमी. ठीक है, लेस्ट्रेशन की वजह से ही हो सकता है. देन देयर आर चांसेस ऑफ डीप पेरिनियल टीयर्स एंड पोस्टपार्टम हैमरेज फ्रॉम द यूट्राइन रिलैक्सेंट्स. ठीक है, पेशेंट को PPH हो सकता है. Then comes vacuum extraction. The another name we are using for vacuum extraction is that is ventouse, है ना, ventouse delivery. So ventouse is a vacuum device used to assist the delivery of a baby when the second stage of labor has not progressed adequately. ठीक है, कब करते हैं हम? जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है वो सही से प्रोग्रेस नहीं होती है. सो व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वी आर डूइंग द वेंटोस डिलीवरी. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू अ फोर्सेप डिलीवरी एंड C-section एंड इट कैन नॉट बी यूज व्हेन द बेबी इज इन द ब्रीच पोजीशन और प्रीमेच्योर बर्थ. ठीक है, तो ये हम कब यूज़ नहीं करेंगे? अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी है. राइट, और एंड दिस पर्टिकुलर मेथड इज अ ऑल्टरनेटिव मेथड टू फोर्सेप्स डिलीवरी और C-section. And this technique is also called as vacuum assisted vaginal delivery or vacuum extraction. Then comes the principles में आपका आ जाएगा creation of an artificial capet by attaching a traction device by suction to the fetal scalp. जो fetus का scalp होता है, ठीक है, वहाँ पे हम artificial capet जो होता है, ठीक है, उसको हम अटैच करेंगे ट्रैक्शन डिवाइस के साथ और जो कि बेबी को एक्सट्रैक्ट करेगा. देन इंडिकेशन एंड प्री रिक्विजिट्स है इसके दैट सेम एज इन केस ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी. जो हमने फोर्सेप्स डिलीवरी में डिस्कस किया है दैट सेम विल बी द प्री रिक्विजिट्स फॉर वेंटोज और वैक्यूम डिलीवरी. देन नेक्स्ट आ गया इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ वैक्यूम. ठीक है, व्हाट आर ऑल आर द इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ वैक्यूम? मैटरनल एग्जॉशन, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर,
fetal distress in the second stage of labor, then maternal illness where prolonged bearing down or pushing efforts would be risky. ठीक है, उस केस में हम वैक्यूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं. Then next आता है technique of vacuum extraction. ठीक है, so the woman is placed again in the lithotomy position and assists throughout the process of pushing. A suction cup is placed onto the head of the baby like this. A suction cup will be placed on the head of the baby and the suction draws the skin from the scalp into the cup. ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं जिससे कि जो डिलीवरी है वो पॉसिबल हो जाती है. So correct placement of the cup directly over the flexion point about 3 centimeter anterior from the occipital fontanelle. ठीक है, जो कप प्लेस करना है वो बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए. आइडली किस जगह पे होता है? 3 सेंटीमीटर एंटीरियरली फ्रॉम द ऑसिपिटल फॉन्टेनल. जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है उससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, एंड इट इज़ क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ अ वैक्यूम एक्सट्रैक्शन. ठीक है, क्योंकि पोजिशनिंग ऑफ कप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर सही जगह पे कप जो है प्लेस नहीं होगा तो उससे हेड जो है वो फ्लेक्स नहीं होगा और डिलीवरी नहीं हो पाएगी फिर. देन वेंटोस डिवाइसेस हैव हैंडल्स टू अलाउ फॉर ट्रैक्शन. व्हेन द बेबीज हेड इज डिलीवर्ड द डिवाइस इज डिटैच्ड अलाउइंग द coucher and the mother to complete the delivery of the baby, right? So once the head is delivered the cup is removed, right? और उसके बाद जो बाकी की बॉडी होती है that will be delivered. So next comes positive aspects of vacuum extraction. So episiotomy इसमें हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी कहीं ज़्यादातर. Then the mother still takes an active role in the birth. Mother actively participate करती है. Then there is no need for special anesthesia. Then the force applied to the baby can be less than that of a forceps delivery. ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है कि इससे फोर्सेप में जैसे क्या होता है बेबी के फेस पे मार्क्स रह सकते हैं. इस केस में जो मार्क्स होंगे वो भी नहीं होंगे, प्लस जो फोर्स होगा वो भी कम होगा इन कंपैरिजन टू द फोर्सेप्स डिलीवरी. Then there is less potential for maternal trauma and compared to forceps and C-section. तो less traumatic है ये. नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे इसके वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के? द बेबी विल बी लेफ्ट विद द टेम्पररी लंप ऑन इट्स हेड नोन एज अ चिगॉन. ठीक है, चिगॉन इसे बोलते हैं हम. सो बेबी जो होता है उसके हेड पे एक टेम्पररी लंप जो है वो रह जाता है, टेम्पररी होता है वो. देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिफेलोहेमेटोमा फॉर्मेशन और सब गैलियल हेमरेज. ठीक है, सो सब गैग्लियल हेमरेज और सिफेलोहेमेटोमा जो है वो उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज जो हम कप है वो अप्लाई कहाँ कर रहे हैं? डायरेक्टली हेड के ऊपर. सो देर आर चांसेस ऑफ डेवलपिंग दीज टू कंडीशंस, ईदर ऑफ दीज टू कंडीशंस. देन नेक्स्ट कम्स एब्डोमिनल ऑपरेशंस. एब्डोमिनल ऑपरेशंस में भी आपको बताया दो हमने डिस्कस करने हैं, सिजेरियन डिलीवरी एंड अनदर वन इज पोस्टमार्टम hysterectomy. ठीक है, सो सिजेरियन डिलीवरी सबसे पहले आएंगे. सो सी सेक्शन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच one or more incisions are made through a mother's abdomen and uterus. ठीक है, to deliver one or more babies. ठीक है, so if the incision is in the abdomen we will call it as laparotomy and if it is in the uterus we will call it as hysterectomy. ठीक है, to deliver one or more babies. So like this you can see in this picture. यहाँ इस तरह से ये कट जो है वो लगाया जाता है to deliver the baby. देन दो तरह की इंसीजन दिया जाता है, वर्टिकल इंसीजन, अदर वन इज हॉरिजॉन्टल इंसीजन. सो आजकल जो हम प्रैक्टिस करते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल इंसीजन और इसको पी फेनेस्टियल इंसीजन भी बोला जाता है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट? सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसीजन इज ऑल्सो नोन एज पी फेनेस्टियल इंसीजन. सो वर्टिकल इंसीजन जो होती है रेयर होती है, पहले के टाइम में करते थे अब नहीं करते हैं. दैट इज क्यूकेस टू मेक बट ग्रेट चांस ऑफ डिहाइसेंस. ठीक है, तो वूंड डिहाइसेंस के चांसेस के अंदर स्कार डिहाइसेंस के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, स्कार डिहाइसेंस के चांसेस. देन हॉरिजॉन्टल और पी फेनेस्टियल इंसीजन जो होता है इट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्यूबिक हेयर और जस्ट अबव द हेयर लाइन एज अ सी सेक्शन इज स्टार्टेड. तो इस तरह से जो हेयर लाइन होती है प्यूबिक हेयर लाइन वहाँ पे छोटा सा कट जो है वो लगाया जाता है. और कॉस्मेटिकली देखें अगर तो ये ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्गर है एंड लेस चांस ऑफ डिहाइसेंस एंड द एक्सपोजर नॉट एज गुड, राइट? तो इसमें डिहाइसेंस के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं. देन इंडिकेशन आ जाती है सीजेरियन सेक्शन की. सो प्रोलॉन्ग लेबर है, डिस्टोशिया है, ब्लीच प्रेजेंटेशन है, देन दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ कंसर्न फॉर फीटल वेलबींग. देन फेल्ड लेबर इंडक्शन इज द अनदर इंडिकेशन. Then failed instrumental delivery like forceps or ventos we have already tried but हुआ नहीं, failure हो गया है तो we are left with the option of C-section.
then uterine rupture, multiple births, previous transverse, सिजेरियन सेक्शन, ठीक है. तो प्रीवियस हिस्ट्री है तो इंडिकेशन है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डिलीवरीज भी जो है वो सी सेक्शन के थ्रू ही होंगी. देन लास्ट आ जाता है आपका पोस्टपार्टम हिस्टेरेक्टमी, ठीक है, एब्डोमिनल ऑपरेशंस में और ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, ठीक है. सो हिस्टेरेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है. हिस्टेरेक्टमी जो है इट मे बी पार्शियल और total. So it is the most commonly performed gynecological surgical procedure, right? So total hysterectomy में क्या है, more extensive mobilization of the bladder medially and laterally is necessary. Otherwise जो supra cervical hysterectomy है, ठीक है, उसमें क्या होगा, amputate the body of the uterus above the level of the cervix, ठीक है. जो supra cervical का मतलब क्या है, cervix के ऊपर वाली जो body होगी that will be removed. total के अंदर तो हम पूरा जो uterus होगा उसको remove कर देते हैं. इंडिकेशंस क्या क्या है पोस्टपार्टम हिस्टेरेक्टमी की. सो इफ देयर इज इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, इफ देयर इज ग्रॉसली डिफेक्टिव स्कार, और इफ देयर इज हाइपोटोनिक यूट्रस, और इफ देयर इज लैसरेशन ऑफ द मेजर वेसल्स, और इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज मायोमास, और इफ देयर इज you can say severe cervical dysplasia is there, then carcinoma in situ, that is also an indication, then placenta previa and accreta, ठीक है. So this was all about the topic operative obstetrics. I hope this revision session has cleared all your doubts, but still if you are having any queries you are free to ask. ठीक है. Thank you so much for your attention. Thank you.